हेलो एवरीवन, आई एम कुसुम एंड वेलकम बैक टू फैकल्टी चैनल। आज की वीडियो हम बात पढ़ेंगे अबाउट उत्तराखंड एलटी सिलेबस ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड, दैट इज which is growth and development in children and effects of heredity and environment in growth and development. तो ये हमारा आज का टॉपिक है which we will be discussing in detail. So let's see what is there. The topics which I am going to discuss are your meaning of growth and development. This is very important for you to know before knowing कि growth और development में teaching का या और factors का और कौन से factors इसमें involved हैं. Then principles of growth and development and effect of heredity and environment in growth and development. Now, what is growth and development? See, growth और development if we say they are inseparable, मतलब दोनों को आप अलग नहीं कर सकते हो, but दोनों दूसरे से अलग हैं. They are inseparable, but still they are different from each other. हाँ, देखिए separable means दोनों को अलग नहीं कर सकते और different means दोनों का nature अलग है. This is the thing. आप देखिए तो जो growth होता है वो आपको represent करता है physical changes of an individual and development. What are the physical changes of an individual development? जैसे कि आपकी height, weight, ये सब आपका growth है. Okay, which overall changes the structure and shape of an individual. Structure and shape जैसे height, weight हो गया, you are thin, you are fat, that is all included in your growth. Growth जो term करता है, it is purely physical sense of a person, right? Height, weight, size, length, etc. Growth is quantitative in nature. Quantitative means उसको आप नाप सकते हो, right? कि आप बोल सकते हो ना कितनी height है, 5'5" है, 5'4" है, 5'3" है, 5'6" है, whatever the height is. Weight कितना है, 50 kg, 60 kg, how much is your weight? Size कितना है, होता है ना, आप size के according अपने clothes choose करते हो. Length हो गया, length आप like of animals you can see the length. Okay, this is like your snakes and all. तो ये growth होती है of anyone. Okay, so you can say this in length also. It starts with conception but ends at a particular age. Now conception से start होती है growth. हमारी conception मतलब जब मदर की womb में उसकी कोख में जब बच्चा कंसीव होता है वो कंसेप्शन वाली स्टेज होती है और वो धीरे धीरे जब वो पैदा होता है, इट टेक्स बर्थ, he or she takes birth and then when it keeps on growing up to a particular age is your growth. Like अगर आपकी 18 age के बाद growth कम हो गई तो that is a age. But growth only is not about the height, weight भी है, size भी है, right? So it keeps on moving. आप देखते हैं कई लोग जो होते हैं वो old age में जाके बहुत thin हो जाते हैं या बहुत मोटे हो जाते हैं. So it is all about it at a particular age we will say that it stops. Now अब development क्या है? Development implies the overall change in shape, form or structure along with the function of the organ. ये आपका development हो गया. Development में आपका organ को भी आप include करोगे. Organ means आपका दिमाग, आपका mind, your how much your mind is developed, ये सब उसमें आ जाता है. ये both quantitative है और qualitative है. ये दोनों इसमें है इसका nature. It is a continuous process starting from the womb and end with the tomb. Now this is a very important line, starting with the womb and end with the tomb. Womb means कोख, tomb means जो क्या कहते हैं उसको हिंदी में, आई एम फॉरगेटिंग द नेम. tomb, you are understanding, जब मर जाते हैं तो दफना देते हैं, वहाँ tomb बन जाता है, right? So this is the process of development. Knowledge of growth and development at the various stage is very essential for the teacher. अब टीचर को स्टिमुलेट करना पड़ता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड. ही कैन डू इट ओनली he has the proper knowledge of the growth and development at various stage. So for teacher to study about growth and development is very important because they have to deal with all the students. They have to teach the students according to the growth and the development. Not only the growth but the development also of the child. Now, what are the principles of your growth and development? क्या है इसके principles? First is principle of continuity. यहाँ पर क्या होता है? डेवलपमेंट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, विच मीन्स डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, राइट? जस्ट आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस स्लाइड दैट डेवलपमेंट कंटिन्यूअस है, आपका लाइफ टाइम है, फ्रॉम द वोम टिल द टूम, राइट? इट स्टार्ट्स विद प्रीनेटल एंड एंड्स विद द डेथ. प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, सेकेंड इज ए प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन. इसमें क्या है? डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स अ मूवमेंट फ्रॉम द होल टू पार्ट्स and from the parts to the whole, and this is way
It is the integration of whole and its parts as well as the specific and the general responses. तो डेवलपमेंट आपके होल से लेके पार्ट्स तक डेवलप होता है और पार्ट से लेके होल, आपकी बॉडी, आपका माइंड, ये सब चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं. एवरीथिंग, every aspect of your development. It can be a physical development also, it can be an environmental development also. It enables a child to develop satisfactorily in relation to various aspects or dimension of his personality. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ये देख सकते हैं, चाइल्ड क्या करता है, पहले क्या होता है, वो क्या स्टार्ट करता है क्या लर्न करता है, हैंड मूवमेंट्स को. ठीक है, पहले वो हाथों, आप देखोगे वो हाथों को ऐसे हिलाता है, देन फिंगर्स की मूवमेंट स्टार्ट करता है, ग्रैब करने की कोशिश करता है चीजों को, तब वो क्या लर्न करता है, दोनों की मूवमेंट्स एक साथ, राइट. तो इसको दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन. मतलब पहले एक चीज को सीखेगा, फिर दूसरी चीज को, फिर दोनों को एक साथ किस तरह से वो काम करेगा, दोनों को मिला के वो आपका इंटीग्रेशन हो जाता है. नाउ कम्स योर थर्ड, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द डेवलपमेंट रेट. लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यहाँ पर देखिए, डेवलपमेंट थ्रू द कंटिन्यूस प्रोसेस, डेवलपमेंट थ्रू द इज अ continuous process but does not exhibit steadiness and uniformity in terms of the rate of development in various development of personality or in the development period and stage of life. It is continuous but it is not uniform. ऐसे नहीं है कि एक स्टेज पे इतना डेवलपमेंट हो गया, दूसरे साल इतना डेवलपमेंट होगा, थर्ड ईयर इतना डेवलपमेंट होगा. नो, आप यू कैन सी when a child is actually डेवलपिंग, जब वो ग्रोथ हो रही होती है और डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो स्टेज अर्ली स्टेज में बहुत जल्दी फास्ट आप देखोगे चीजों को. बाद में जैसे जैसे एज बड़ी होती रहती है वो थोड़ा थोड़ा स्टैग्नेंट होता रहता है, या यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती है उसमें. एग्जाम्पल, अ पर्सन में हैव अ हाई रेट, सी एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, पर्सन में हैव अ हाई रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन टर्म ऑफ हाइट एंड वेट बट नॉट हैव द सेम पेस ऑफ मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट. यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट दिखाया गया है कि growth and development, आप देखते हो many a times when we see that the children or those who are slow learners, they are fully developed, they are, उनका पूरा growth है, height, weight, everything is appropriate, everything is there which is matching according to the class and situation where it is. But मेंटल, कईयों का हम देखते हैं मेंटल और सोशल डेवलपमेंट इतना ज्यादा नहीं होता है, राइट. सोशल इन द सेंस वो सोसाइटी से जल्दी घुल मिल नहीं पाते हैं, मेंटल डेवलपमेंट इतना नहीं रहता है, मीन्स दे उनका आईक्यू लेवल थोड़ा लो होता है, या किसी का बहुत ज्यादा हो जाता है आईक्यू लेवल. सो ये यूनिफॉर्मिटी नहीं है दोनों में. तो डेवलपमेंट में आप देखोगे कि इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस बट इट डज नॉट एक्सिबिट स्टेडीनेस एंड यूनिफॉर्मिटी. फोर्थ प्रिंसिपल है आपका इंडिविजुअल डिफरेंस. Now this I have told you so many times, every child is different, every organism is a different creation in itself. इसका सबसे important क्या है, one of the most important principle of development is that involves individual difference. कोई fixed rate of development नहीं है. All children will learn to walk is universal, but the time at which each child takes his her first step may vary. तो आप देखेंगे, आप खुद ही नोट करेंगे ये चीज कि जो एक चाइल्ड होता है, किसी सारे आप बच्चों को नोटिस करो, कोई बहुत जल्दी चलना सीख जाता है, कोई थोड़ा लेट चलना सीखता है, कोई जल्दी बोलना सीखता है, कोई बहुत थोड़ा लेट बोलना सीखता है. तो हर एक चाइल्ड अपना टाइम लेता है, राइट. तो कोई बहुत सो दिस इज द थिंग, कोई जल्दी स्कूल चल जाता है, जल्दी लर्न करना स्टार्ट कर देता है, फास्ट लर्नर होता है, कोई स्लो लर्नर होता है. सो वी कैन से हियर दैट द everyone, each and every child is individual, each and every individual is different in their own way. Then it's principle of uniformity pattern. See, अभी हमने पढ़ा था, although development does not proceed at a uniform rate and shows marked individual differences with regard to the process and outcome of various stages of development, yet it follows a definite pattern in one or the other dimension which is uniform. See, हम देखेंगे कि अभी हमने देखा था यूनिफॉर्म नहीं है डेवलपमेंट, राइट. इट इज नॉट यूनिफॉर्म बट एक पैटर्न जो होता है वो सेम है सबका. ऐसे नहीं है ना कि जब किसी की हाइट बढ़ रही है तो उसका सिर्फ सिर बढ़ रहा है, उसके सिर्फ हाथ बढ़ रहे हैं, पैर नहीं बढ़ रहे हैं. इट इज नॉट सो ना. इट ग्रोज इन प्रोपोर्शन, उसका डेवलपमेंट प्रोपोर्शन में होता है, उसके माइंड के, उसके आई मीन बॉडी के हर एक पार्ट का डेवलपमेंट होगा. इफ हिज हैंड्स आर ग्रोइंग, हिज फिंगर्स विल आल्सो ग्रो, दो द रेट अलग होता है सबका ग्रो करने का, बट द पैटर्न इज द सेम. ओके, सो देयर इज यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट.
देन इज ए प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। अब यहाँ क्या है कि किसी एस्पेक्ट में लेके अगर हम देखें तो रिलेशन व्हाइल डेवलपिंग इन रिलेशन टू एनी एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी द चाइल्ड फर्स्ट पिक्स और एग्जिबिट जनरल रिस्पॉन्स and learns how to show specific and goal directed responses afterwards. When you go to school also, तो आप देखोगे जब प्राइमरी के बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो उनको वो चीज़ें पहले दिखाई जाती हैं जो उन्हें पता है, जो उनको पता है ये क्या है. They show the pictures, they tell them the words, they show them any individual, तो उनको पता है वो क्या है. उसके बाद उससे रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ दिखाते हैं, स्पेसिफिक चीज़ जो उनको एक्चुअली जो गोल ओरिएंटेड रिस्पॉन्स दे सके उनको, राइट. सो दे आर मूविंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. देन इज योर सेवेंथ प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे. प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट. यहाँ पर क्या है, डेवलपमेंट बोला जाता है कि डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज अ प्रोसेस दैट कैन नॉट बी डिफाइंड होली बेस्ड ऑन ईदर ऑन हेरिडिटी और एनवायरमेंट. दोनों ऐसे नहीं बोल सकते सिर्फ हेरिडिटी के बेस पे किसी बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है या फिर सिर्फ एनवायरमेंट के बेसिस पे हो रहा है. ये दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके डेवलपमेंट पे. देयर आर आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ बोथ. मोस्ट ऑफ द साइकोलॉजिस्ट एग्री दैट एन इंटरप्ले ऑफ दीज टू फैक्टर्स लीड्स टू डेवलपमेंट. ज्यादा साइकोलॉजिस्ट जो है वो दोनों का रोल इसमें इंपॉर्टेंट बताते हैं इन डेवलपमेंट. जहां पर हेरिडिटी क्या करता है, डिसाइड सेट लिमिट करता है ऑन डेवलपमेंट, मोस्टली फिजिकल डेवलपमेंट पे. Environmental influences complete the development process, qualitative, right? ग्रोथ पे आपका मोस्टली हेरिडिटी करेगा, जो फिजिकल आपका ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है. बट जो क्वालिटेटिव वाला जो होता है जिसमें कि एनवायरमेंटल सब कुछ, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स उसमें इंक्लूडेड होते हैं, वो आपका क्वालिटेटिव हो जाता है. अब एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस प्रोवाइड स्पेस फॉर मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट. इसमें मल्टी डायमेंशनल मतलब हर जगह से आपका डेवलपमेंट हो रहा है. इट्स नॉट ओनली अबाउट द ग्रोथ बट फिजिकली, मेंटली, सोशल डेवलपमेंट, योर एनवायरमेंटल डेवलपमेंट इज देयर. हर एक चीज इसमें इंक्लूड हो जाती है. किससे? इंटरेक्शन विद फैमिली, पीयर्स, सोसाइटी एंड सो ऑन. सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वी कैन से they both are joint product of heredity and environment. Eighth is your principle of cephalocaudal. What is this cephalocaudal? Cephalocaudal here means from foot to toe. You can see here the picture. ये cephalocaudal है आपका ऊपर, ये foot से लेके ये पूरा आपका toe तक. This is your cephalocaudal. I will just remove it. It's not looking good, yeah. So just a moment. I will erase this. So it is your cephalocaudal. I'll just tell you what does it really mean. Okay. यहाँ पर क्या होता है, डेवलपमेंट प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस. लॉन्गिट्यूडिनल यहाँ ऊपर से लेके ये वाले पार्ट से लेके राइट को इस वाले पार्ट तक, ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल डेवलपमेंट होता है एक बच्चे का. सो डेवलपमेंट फ्रॉम हेड टू फुट और टो. That is why before it becomes able to stable, जब क्या होता है ना, आप देखोगे जब बच्चा पैदा होता है सबसे पहले वो क्या चीज अपनी संभालने की कोशिश करता है, हेड. कभी आप छोटा जब बच्चा पैदा होता है, you all must have seen a kid. So we first of all we try to support the child with the head, but he tries to give support himself. वो खुद अपना सर जो है स्टेबल करने की कोशिश करता है, संभालने की. उसके बाद वो अपने हेड में, फिर उसके बाद वो आर्म्स में, देन लेग्स पे कंट्रोल करता है. राइट होता है ना, पहले सर संभाल रहा है, फिर हाथों पे कंट्रोल आ रहा है उसका, फिर लेग्स लास्ट में आता है. हाउ लास्ट में कैसे, वो चलना लास्ट में सीखता है ना. हाथ की मूवमेंट्स उसकी रहती है, सर की मूवमेंट्स रहती है, पैर की मूवमेंट्स रहती है, बट पैर का मेन वर्क है टू वॉक. सो 1 साल 1.5 साल में बच्चा सीखता है चलना. So this is called cephalocaudal, principle of cephalocaudal. Then is your principle of proximodistal. Proximodistal में होता है आपका development of motor skills to start its central body to outwards. मतलब यहाँ बीच से, बॉडी के बीच से बाहर की तरफ इधर, और यहाँ पर से ये इधर. ओके, so this is proximodistal. इसमें है, that is why in the beginning the child is seen to exercise control over the large fundamental muscles of the arm. सबसे पहले वो देखोगे ना, अंगड़ाइयाँ लेते हैं, हाथ घुमाते हैं, राइट, एंड देन हैंड, और उसके बाद वो स्मॉलर पार्ट में आते हैं. मतलब फिंगर्स को ग्रैस्प करना, किसी चीज को ग्रैप करना, वो लास्ट में आते हैं फिंगर्स की मूवमेंट में,
राइट. सो दिस इज कॉल्ड प्रॉक्सिमोडिस्टल. बट ये चीजें जो होती हैं पैरेलली चलती रही, सेफेलोकॉर्डल भी और आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल भी, ये पैरेलल चलता रहता है आपका. नाउ कम्स द प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी. What is principle of predictability? It means that with the help of the uniformity of pattern and sequence of the development, uniformity of pattern और जो sequence होता है वो predictable होता है. हम बोलते हैं ना कि पहले ये बोलना, पहले ये बैठना सीखेगा बच्चा, पलटियां मारेगा, फिर उसके बाद वो बैठना सीखेगा, उसके बाद घुटने से चलना सीखेगा, राइट, क्रॉलिंग सीखेगा, एंड देन इट विल स्टार्ट वॉकिंग. या फिर जैसे आप एक एज होती है पर्टिकुलर, जब बोलना स्टार्ट करता है, पहले वो बैबलिंग करता है, ऐसे करता है, राइट. फिर वो एक एक करके एक वर्ड बोलेगा, देन 2 वर्ड्स पे आएगा, देन वो फॉर्मेशन करना स्टार्ट करेगा सेंटेंसेस का. थोड़ा गलत करेगा, ग्रामेटिकली सब कुछ गलत होगा, आई नो, बट वो बोलना सीखेगा. तो ये एक पैटर्न है, प्रेडिक्टेबल है. आप ऐसे नहीं बोलोगे सीधे वो सेंटेंस बोलेगा उसके बाद 1 वर्ड सीखेगा, नो, राइट. सो इट इज प्रेडिक्टेबल कि किस तरह से एक यूनिफॉर्मिटी और पैटर्न बना हुआ है बच्चे की ग्रोथ का. नाउ प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट. इसमें क्या है, चाइल्ड डजंट प्रोसीड स्ट्रेट और लीनियर ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट एट एनी स्टेज एंड नेवर टेक्स प्लेस विद अ कांस्टेंट और स्टेडी पेस. ये इसका लीनियर कभी नहीं रहता है, स्पाइरल होता है. कैसे? आफ्टर द चाइल्ड हैज डेवलप्ड टू अ सर्टेन लेवल, देयर is likely to be a period of rest for consolidation of the development progress. मतलब वो जब उसका डेवलपमेंट होता है तो एक टाइम पे आगे स्टैग्नेंट हो जाता है, मतलब वो रेस्ट पे आता है, फिर उसके बाद दोबारा वो फिर से स्टार्ट होता है. लेकिन वो स्पाइरल आपने देखा होगा, कैसा होता है स्पाइरल, ये होता है आपका स्पाइरल, राइट. तो बच्चा जब मूव करता है उसका डेवलपमेंट इसी वे में होता है. वो आगे आता है, वो पीछे देखता है, चलता भी है ना, तो आप देखोगे जो चलता है आगे आगे वो पीछे जरूर देखता है, पीछे मुड़ के देखेगा. ऐसे ही ये डेवलपमेंट होता है इनका. दैट इज स्पाइरल काइंड ऑफ डेवलपमेंट. नाउ वी कम्स प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन. Various aspects or dimensions of one growth and development are interrelated. कैसे? What is achieved or not achieved in or other dimensions in the course of the gradual and continuous process of the development surely affects the development of other dimensions. तो इंटर रिलेशन किस तरह से है इसमें डेवलपमेंट में, ग्रोथ और डेवलपमेंट का. हेल्दी बॉडी टेंड्स टू डेवलप अ हेल्दी माइंड. अगर बॉडी हेल्दी है तो माइंड भी हेल्दी होगा और इमोशनली इंसान ज्यादा स्टेबल होगा. फिजिकली स्ट्रांग होगा तो फिर वो सोशली कॉन्शियस पर्सनैलिटी नहीं होगी उसकी, राइट. आप देखोगे जो बहुत हेल्दी होते हैं, हेल्दी आई एम नॉट सेइंग कि फैट और व्हाट, बट हेल्दी होते हैं जो वो ऐसे नहीं है कि कोई थिन है वो ही हेल्दी है, पतला दुबला ही हेल्दी होगा, या फिर जो परफेक्ट है. हेल्दी मीन्स योर माइंड इज हेल्दी, योर बॉडी इज हेल्दी, राइट. कोई ऐसे बीमारियां नहीं है, तो वो ज्यादा सोशली कॉन्शियस भी ज्यादा होते हैं. तो जो और जिनका बॉडी आप देखोगे हेल्दी बॉडी नहीं होता है, वो उनके अंदर थोड़ा सा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी रहता है. सो वो थोड़े इमोशनल और मैल एडजस्टेड पर्सनैलिटी होते हैं, राइट. वो बाहर निकलना पसंद नहीं करते, सोशली इन्वॉल्व होना पसंद नहीं करते हैं, बिकॉज दे फील दैट पीपल आर स्टेयरिंग देम, लोग उन्हें कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे कि थोड़ा हेल्दी हो जाओ या सच काइंड ऑफ थिंग्स. सो दे आर लिटिल बिट inferior in their nature, but a healthy body is more socially conscious personality. Now principle of association of maturation and learning. अब ये maturation and learning का क्या है, मेल देखिए, biological growth and development are known as maturation. Biological कैसे, आपकी बॉडी आप किस तरह से डेवलप हो रही है, तो वो आपका बायोलॉजिकल हो गया. बायोलॉजिकल चेंजेस में क्या क्या आ जाता है, आपका ब्रेन एंड द नर्वस सिस्टम which provide new abilities to a child. तो जैसे जैसे आपका ब्रेन डेवलप होगा तो नर्वस सिस्टम भी डेवलप होगा, आपके अंदर और एबिलिटीज आएंगी. एक छोटे बच्चे से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो 10th या 12th के सम्स करे या फर्स्ट सेकंड के भी सम्स करे, राइट. अगर बहुत न्यू बॉर्न बेबी है, यू कैन नॉट. जैसे जैसे उसकी वो मैच्योर होगा, उसका माइंड मैच्योर होगा, देन उसकी एबिलिटीज और इंक्रीज होती रहेंगी. मतलब उसका डेवलपमेंट क्या होता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. सिंपल डेवलपमेंट से वो कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है. बिगनिंग में, इन द बिगनिंग, शुरू में क्या होता है, चाइल्ड लर्न्स टू कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, राइट, देन ग्रेजुअली मूव्स टू एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स. कैसे, जब हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, जब बच्चे को पढ़ाने के लिए सपोज हम उसको कोई सम दे रहे हैं करने के लिए, 2 + 2 क्या हुआ, सो फर्स्ट वी हैव टू राइट ऑन द नोटबुक
कि ये देखो ये 2 होता है, ये 2 होता है, इसको प्लस करो, ये 4 हो गया आपका, राइट। तो वो कॉन्क्रीट चीजों की तरफ देखता है, तब उसको धीरे 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 आप देखोगे बाय द टाइम ही रीचेस टू क्लास 2 और क्लास 3, तो वो माइंड में खुद ही अपने एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के थ्रू वो सॉल्व कर देगा, 2 + 2 ओके इट इज 4। अब उसको कॉन्क्रीट देखने की जरूरत नहीं है चीजों को, बट इन द माइंड ओनली ही इज सॉल्विंग द थिंग्स। नाउ दिस ट्रांजिशन हैपेंस बिकॉज ऑफ मैच्योरेशन ओनली। जब तक उसमें मैच्योरिटी नहीं आएगी, ये ट्रांजिशन आप नहीं देख सकते। Here we have ended with these principles of development and growth. अब हम देखते हैं effect of heredity and environment in growth and development. क्या effect है? सबसे पहले आप देखिए, हर एक इंडिविजुअल जो होता है उसका अलग पैटर्न होता है बिहेवियर और पर्सनैलिटी का, दिस ऑल वी नो। अब इसका ये जो डिफरेंस होता है ये आप देख सकते हो थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ये हेरिडिटी और एनवायरमेंट के इन्फ्लुएंस से ही आप हो सकता है। जैसे ट्रूली स्पीकिंग इफ वी से दैट हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी। अब सी नो पर्सन कैन बी बोर्न विदाउट हेरिडिटी, राइट, या जीन्स कैनॉट डेवलप विदाउट प्रॉपर एनवायरमेंट। So individual's heredity is present since the moment of conception. Conception से start होता है एक individual की heredity and some environmental conditions start influencing him from his very early stage. तो जो environmental conditions होती हैं वो भी बहुत starting से ही उसमें आ जाती हैं। हर एक each trait and response of an individual depends on his heredity and environment only. मीनिंग क्या है हेरिडिटी का, पहले आप ये देख लीजिए। देखिए हेरिडिटी क्या होता है, सम टोटल ऑफ द ट्रेट्स पोटेंशियली प्रेजेंट इन द फर्टिलाइज्ड ओव्यूम। वी ऑल नो अ वुमेन्स बॉडी हैज अ ओवरी जिसके अंदर ओव्यूम्स होते हैं, एग्स कह सकते हैं हम उनको, राइट, वो दे आर द एग्स। तो वो फर्टिलाइज जब होते हैं तो सारी जो क्वालिटीज इनहेरिट करता है वो जो ओव्यूम होता है, वो जब सारी क्वालिटीज इनहेरिट करता है ऑफ मदर एंड फादर, उसको हम कहते हैं हेरिडिटी। आफ्टर नोइंग द मीनिंग वन मस्ट नो द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी ऑल्सो, दैट हाउ इज चाइल्ड बायोलॉजिकली बोर्न, लाइफ स्टार्ट्स एज अ सिंगल सेल एंड दैट इज कॉल्ड कंसेप्शन टाइम। यहाँ पर कंसेप्शन होता है, कैसे होता है, वुमेन के एग्स ओवरीज में मेल का स्पर्म जाता है, वो फर्टिलाइज होता है, तो वहां कंसीव हो जाता है चाइल्ड, राइट। सो ये कंसेप्शन टाइम हो गया। द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल जर्म सेल्स कॉजेज fertilization of the ovum and the child, a fertilized egg is called zygote। तो ये जो fertilized egg होता है इसको बोलते हैं zygote। अब ये जो zygote होता है इसमें क्या होता है, it is of 46 chromosomes, I forgot to put this arrows, and in 46 chromosomes में 23 मेल होते हैं और 23 फीमेल के होते हैं। Is it clear? अब ये हो गया आपका मीनिंग ऑफ हेरिडिटी। इसमें क्या होता है, each chromosome contains 40 to 100 genes। हर एक क्रोमोसोम में 40 से 100 आपके जीन्स होते हैं। अब ये जीन्स जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट्स। कुछ ट्रेट्स होते हैं हर एक इंसान में, कुछ अलग अलग ट्रेट्स होते हैं, तो यही जीन्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रेट्स के लिए। जैसे पीटरसन ने बोला था, हेरिडिटी में बी डिफाइंड एज व्हाट गेट्स फ्रॉम हिज एंसेस्ट्रल स्टॉक थ्रू हिज पेरेंट्स, जो उसको उसके पेरेंट्स के थ्रू मिला है। जैसे कहते हैं ना, इसकी नोज देखो बिल्कुल अपने फादर की तरह, आईज बिल्कुल फादर की तरह, हाइट बिल्कुल फादर मदर की तरह है, whatever, लिप्स इसके मदर की तरह। आई मीन द थिंग इज दैट जो चीज आप पे इनहेरिट होती है थ्रू योर पेरेंट्स। आईज, कईयों की आईज का कलर जो होता है, किसी का ग्रीन होता है, ब्लू होता है, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, दीज आर द कलर्स ऑफ द आईज जो पीपल होता है, राइट। Douglas and Holland says that heredity consists of all the structures, physical characteristics, functions or capacities derived from parents and other ancestors too. Now ये जरूरी नहीं है सिर्फ पेरेंट्स से आप पे आ रहा है, बट ऐसे हो सकते हैं दादा की तरफ से, नानी की तरफ से भी आप पे कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकते हैं बच्चे पे। सो ये आपके पर्टिकुलर जीन्स पे, जीन्स ही इसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Child carries with himself several physiological and psychological peculiarities that are present in the parents. In fact, ये जो heredity होता है ये determine करता है structure, complexion, structure of hair, height, ये सब चीजें आपकी जो include होती हैं, facial features like nasal index, etc. ये सब जो होता है ये आपको heredity के through मिलता है। Now, what is the meaning of environment? Environment is nothing but the sum total of surroundings in which an individual has to live.
हम कहाँ पर रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, ये आपका एनवायरनमेंट होता है. साइकोलॉजिकली एन इंडिविजुअल्स एनवायरनमेंट इज रिलेटेड टू ऑल दो स्टिमुलाई विच ही फेसेस फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन टिल डेथ. तो आपका एनवायरनमेंट आपका व्हेन अ चाइल्ड इज इनसाइड द मदर्स वूम, वहां से स्टार्ट हो जाता है टिल द डेथ. तो वो अलग अलग किस टाइप के स्टिमुलाइज होते हैं. स्टिमुलाइज में जब चेंजेस आते हैं एनवायरनमेंट में, उसको स्टिमुलाई कहते हैं. तो वहां से लेके फर्टिलाइजेशन से लेके डेथ तक ये सब इंक्लूड्स आपका एनवायरनमेंट में होता है. एनवायरनमेंट इज जनरली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. क्या है वो? नेचुरल एंड योर सोशल. नेचुरल एनवायरनमेंट मतलब होता है वो सब चीजें एंड फोर्सेस ऑन एंड अराउंड द अर्थ दैट इन्फ्लुएंस अ पर्सन. जो कुछ भी चेंजेस अर्थ में है, कुछ भी हो रहा है, तो वो कैसे कैसे इंडिविजुअल से इन्फ्लुएंस होता है. तो एनवायरनमेंट का रोल आपके साइकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कैसा एनवायरनमेंट मिलता है? अगर अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है तो आप खुश हैं, अगर आपको अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है तो आप अनहैप्पी हैं. सो इट इज व्हाट हाउ एन एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस अ पर्सन्स पर्सनैलिटी. Social environment, here we mean the environment which person sees around himself on acquiring consciousness in society. जब वो सोसाइटी में आता है, जब वो कॉन्शियस होता है सोसाइटी आगे, जैसे जब वो लैंग्वेज सीखना, रिलीजन एक्सेप्ट करना, कस्टम्स ट्रेडिशंस को फॉलो करना, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को यूज करना, मीन्स ऑफ लग्जरी कैसे आप उनको यूज कर रहे हो, फैमिली, स्कूल, सोशल ग्रुप्स एक्सेट्रा, ये सब आपके सोशल एनवायरनमेंट में इंक्लूड हो जाते हैं. बाय ह्यूमन सोसाइटी वी मीन दोज इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस, वो इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं विच ह्यूमन बीइंग हैव एस्टैब्लिश्ड फॉर देयर ओन प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी. जैसे साइकोलॉजिस्ट फ्रूड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट. इनके बारे में जरूर पढ़ेंगे हम लोग, बाद में मैं लेके आऊंगी वीडियो. सो फ्रूड, हैवलॉक, ईल्स हैव एक्सेप्टेड द फैक्ट दैट सोशल एनवायरनमेंट इज वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग इन ह्यूमन बिहेवियर एंड इट्स पर्सनैलिटी. तो ह्यूमन सोशल एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक किसी की पर्सनैलिटी को चेंज करने में. जैसे कि कोई बहुत रिच या कोई रिच फैमिली में अगर बॉर्न हुआ है, यू विल सी दैट उसका अलग एक डेवलपमेंट स्टेज ही उसका अलग है. ग्रोथ और डेवलपमेंट में किस तरह से आपका एनवायरनमेंट उसको हेल्प कर रहा है, राइट. तो एक और जो आप अगर देखोगे, समवन हैज टेकन बर्थ इन अ स्लम, सो यू विल से उनको अलग एनवायरनमेंट मिल रहा है, उनका साइकोलॉजिकली अलग पर्सनैलिटी बन गई है. तो यू कैन कंपेयर इट लाइक कौन किस एनवायरनमेंट में हुआ है तो उनके उसके अकॉर्डिंग कैसे चेंजेस आए हैं उनमें. नाउ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की. सबसे पहले हम देख लेते हैं. नॉलेज ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट हेल्प्स द टीचर टू नो द वेरिंग नीड्स एंड एबिलिटीज ऑफ द चिल्ड्रन. अगर टीचर को पता है कि ये किस हेरिडिटी से बिलोंग कर रहा है, किस एनवायरनमेंट से आया है, तो फिर एक टीचर को बहुत ईजी हो जाता है बच्चे की नीड्स और एबिलिटीज को वेरी करने में, कि किस तरह से कौन सा चाइल्ड वेरी करता है. नाउ second, it helps to provide proper guidance to his children in the field of educational, vocational and personal. So उससे क्या होगा? proper guidance दे सकता है टीचर स्टूडेंट्स को. और थर्ड पॉइंट क्या है? द टीचर टू क्लासीफाई द स्टूडेंट्स एज गिफ्टेड, नॉर्मल एंड स्लो लर्नर एंड अरेंज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशन फॉर देम. कई बच्चे होते हैं जो स्लो लर्नर होते हैं, कोई गिफ्टेड लर्नर होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं, एवरेज बच्चों में आते हैं. तो उनके अकॉर्डिंग वो उस टाइप के एजुकेशन मेथड को यूज कर सकता है when he or she is teaching the students. It helps the teacher to provide better learning environment in the school. तो एक अच्छा एनवायरमेंट उनको दे सकता है टीचर. देन इट हेल्प्स द टीचर टू नो द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. इससे क्या होगा? जो हमने पढ़ा था एक प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, उसके अकॉर्डिंग वो अरेंज कर सकता है एजुकेशन एक्सपीरियंस को. और टीचर क्या हेल्प कर सकता है? स्टडी द बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन अंडर डिफरेंट सिचुएशंस. तो किस तरह से कौन सा बच्चा किस सिचुएशन में कैसे बिहेव कर रहा है वो टीचर स्टडी कर सकता है. helps the teacher to organize various curricular and co-curricular programs for the best benefit of the children. एक बार उनको उनका इंडिविजुअल डिफरेंस पता चल जाए तो उसके अकॉर्डिंग वो co-curricular एक्टिविटीज भी अरेंज कर सकता है इन द क्लासरूम. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं that knowledge of both heredity and environment is of utmost value to the teachers. So the influence of heredity and environment in growth and development is very very important. यहाँ पर टीचर्स के लिए भी, एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए भी और एजुकेशनल प्लानर्स के लिए भी. सो इफ इट इज रियलाइज द सिस्टम ऑफ एजुकेशन विल बी चेंज टू अ ग्रेट एक्सटेंट. अगर ये चीज़ इम्प्रूव हो गई, किस तरह से हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट
इन्फ्लुएंस करता है इन ग्रोथ ऑफ चाइल्ड इन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ चाइल्ड. सो ये चीज़ बहुत एक तरह से क्रांति आ जाएगी एजुकेशन सिस्टम में. हम बहुत अच्छा कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर ऑफ अवर चिल्ड्रन. सो आई होप दैट दिस इज़ वेरी क्लियर. मैंने पूरी कोशिश करी आपको समझाने की, बेस्ट स्लाइड्स लेके आई हूँ. एंड अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल and keep sharing the video so that everyone gets the benefit from our videos. Okay, then see you on the next lecture. See you in the next session. Till then, take care everyone and bye-bye.